Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will understand exercise 3.4 of chapter Understanding Quadrilaterals. So the first question is, state true or false. All rectangles are squares. So here we need to know the properties of the quadrilaterals. So firstly we will see all the properties. First is trapezium. So trapezium, it looks something like this. A, B, C, D. Trapezium की properties क्या है? That is only one pair of opposite sides, they are parallel. That is AB is parallel to DC, and the non-parallel sides, they are not equal. That is AD not equal to BC. Next is kite shape. Kite shape में क्या है? The pair of adjacent sides are equal. That is AD is equals to AB and DC is equals to BC. Longer diagonal bisect the shorter diagonal. So if we join A and C vertex points, we get AC and we get BD. AC is longer diagonal, so longer diagonal bisect the shorter diagonal. So OB is equals to OD, and angle B will be equal to angle D. That is angle opposite to the longer diagonal, they are equal. So angle B is equals to angle D, but angle A not equal to angle C. And the last property of kite shape, that is diagonals, they are perpendicular to each other. The diagonals, they are perpendicular to each other. Okay. Parallelogram. So in parallelogram, A, B, C, D, opposite sides are parallel as well as they are equal. Opposite angles, they are equal. Adjacent angles, sum to give 180 degree, that is adjacent angles, they are supplementary. So angle B plus angle C 180 degree, angle C plus angle D 180 degree, so on. And the diagonals, they bisect each other. So if we join this O, so O A is equals to OC and OB is equals to OD. Next is rhombus. Rhombus, all sides are of equal length. Okay. So AB equal to BC equal to CD equal to DA, and have all the properties of parallelogram. That is, rhombus has all the properties of parallelogram, in which parallelograms opposite sides are parallel equal. This is equals to this, this is equals to this, because all sides are equal, opposite angles are equal, adjacent angles sum to give 180 degree, diagonal bisect each other. The another property of rhombus is that diagonal bisect each other at 90 degree. That is, this angle is 90 degree, this is also 90 degree. Rectangle, opposite sides are equal and parallel, has all the properties of parallelogram. All angles, they are 90 degree. This is 90, this is 90, this is 90 and this is 90 degree. Diagonals, they are equal. That means if I will join AC and BD, so AC is equals to BD. Next is square. All sides are equal. So in square shape, you know, A, B, C, D, all sides, they are equal, has all the properties of rectangle as well as rhombus, and all angles, they are the interior angles, that is this, they are 90 degree. So now we can do the question number 1 easily. First part is, all rectangles are squares. This is a false statement. Why? Because in rectangles, opposite sides, they are equal, whereas in square all sides are equal. So all rectangles cannot be squares, because in rectangles opposite sides are equal, whereas in squares all sides are equal. So you can give the reason here. In rectangles opposite sides are equal, whereas in square all sides are equal. Next part, B, all rhombuses are parallelograms. This is a true statement. Why? सारे के सारे rhombus क्या होंगे? Parallelogram होंगे. So that means कि जो rhombus है उसको क्या करना चाहिए? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए. दैट मीन्स द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यस, ऑपोजिट साइड्स जो है रोम्बस के अंदर इक्वल है. क्यों? क्योंकि सारी की सारी साइड्स ही इक्वल है रोम्बस के अंदर. देन ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं
पैरेललोग्राम के अंदर, तो रोम्बस के अंदर भी वो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, रोम्बस के अंदर भी करते हैं। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री पैरेललोग्राम के अंदर एंड रोम्बस के अंदर भी हैं। That means all rhombuses are parallelograms because all the properties of parallelograms, they are satisfied by the rhombuses. Next is C part. All squares are rhombuses and also rectangles. So this is also a true statement. Why? Firstly, we will see all squares are rhombuses. That means square should have all the properties of rhombus. रोम्बस में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यस स्क्वायर में साइड्स आर इक्वल हैं। देन रोम्बस में क्या होता है कि जो डायगनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्वायर भी करता है। 90 डिग्री पे एंगल जो हमारे डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी हमारे जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। एंड और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल हैं एंड बाकी सारे जो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, क्योंकि रोम्बस जो एक पैरेललोग्राम होता है एंड स्क्वायर जो है उसके अंदर सारी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दैट मीन्स वो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, एंड ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स दे आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल्स में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। एंगल्स हमारे 90 डिग्री होते हैं, इंटीरियर एंगल्स रेक्टेंगल के हमने देखा, स्क्वायर में भी वो 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, स्क्वायर्स में भी करते हैं। सो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेक्टेंगल्स की वो क्या है, स्क्वायर जो है वो होल्ड करता है। दैट मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट कि सारे के सारे स्क्वायर्स जो हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है, ये गलत है। वाई? बिकॉज पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। स्क्वायर में क्या होता है, सारे के सारे साइड्स इक्वल है, सो ऑपोजिट साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। देन पैरेललोग्राम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जो ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे स्क्वायर में कि सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं, इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, सो ऑपोजिट एंगल्स भी 90 डिग्री हैं, दैट मीन्स इक्वल है। एडजेसेंट एंगल सम टू गिव 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम। एंड अगर मैं कोई भी दो एंगल्स लूँ, लेट्स से दिस एंड दिस, क्योंकि ये भी 90 है ये भी 90, 90 + 90 180 डिग्री, दैट मीन्स कि एडजेसेंट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री आ रहे हैं। सो हमारे पास जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की वो स्क्वायर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स। ओके, अगर यहाँ पे लिखा होता ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम तो हम लिखते ट्रू, यहाँ पे नॉट लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर आप डायगोनल्स की बात ले लोगे तब भी आपका होल्ड करेगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम्स, इन स्क्वायर डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। सो दिस इज अ false statement that all squares are not parallelograms. Next part, all kites are rhombuses. This is a false statement. All kites are rhombuses. So इसका मतलब क्या है कि जो rhombus की सारी properties हैं वो kite को follow करनी पड़ेगी, है ना। अब rhombuses में क्या होता है, all sides they are equal, ठीक है। rhombus में क्या है, all sides they are इक्वल, वेयर एज काइट में क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सिर्फ या एडजेसेंट साइड्स जो है वो ही सिर्फ इक्वल होती है, सारी की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। दैट मीन्स काइट क्या है, वो रोम्बस नहीं है, ठीक है। ऑल काइट्स आर नॉट आर रोम्बसेस, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल, वेयर एज इन काइट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और द एडजेसेंट साइड्स दे आर ओनली इक्वल। अगर उल्टा गिवन होता ऑल रोम्बसेस आर काइट्स तो ये स्टेटमेंट क्या होती, ट्रू होती, क्योंकि काइट्स में हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग या एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, रोम्बसेस में सारी की सारी साइड्स इक्वल है, सो एडजेसेंट साइड्स भी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। देन काइट शेप में हमारे पास क्या होता है कि जो डायगनल जो है लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगनल, एंड रोम्बस में डायगनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं काइट में, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हमने पढ़ा था कि जो लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगनल हमने पढ़ा था। सिमिलरली रोम्बस में भी सेम प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट जो है वो क्या कर रहा है, रोम्बस सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। नेक्स्ट इज
all parallelograms are trapeziums. So ये true है या false? This is a true statement that all parallelograms are trapeziums. दैट मीन्स जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा. सो ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम के अंदर हमारे पास वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं. एंड पैरेललोग्राम की में क्या होता है कि जो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होती हैं. ठीक है. सो ऑल पैरेललोग्राम दे आर ट्रेपीजियम्स. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 1, all squares are trapeziums. This is a true statement. Why? Because in trapezium जैसे हमने पढ़ा कि only one pair of opposite side they are parallel, whereas in square opposite sides they are parallel and all sides they are equal. So trapezium में सिर्फ one pair of parallel side होता है. यहाँ पे स्क्वायर में हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. सो जो स्क्वायर है वो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है. दैट मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. सो क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा ट्रेपीजियम, हमने काइट शेप पढ़ा, हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, हमने रेक्टेंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा. ठीक है. उनमें से वो कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसकी जो चारों के चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल है? वो कौन से हैं? रोम्बस एंड स्क्वायर. रोम्बस एंड स्क्वायर में जो 4 साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल लेंथ की. एंड 4 राइट एंगल्स वो हमने कहाँ पढ़े थे? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के अंदर, जिसके इंटीरियर एंगल्स क्या है हमारे पास, 90 डिग्री. चारों के चारों इंटीरियर एंगल्स क्या है, 90 डिग्री. सो द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ पॉलीगन विद 4 साइड्स. वो पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल. एंड स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल because square has 4 sides. स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, दैट मीन्स स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट, हाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं दे आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स जो हैं दे आर ऑल्सो इक्वल. So opposite sides parallel and equal है and opposite angles they are also equal. Whereas in square opposite sides जो है वो equal होती हैं because all sides are equal in square and opposite angles जो है वो भी equal होते हैं square के अंदर, क्योंकि सारे के सारे angles equal होते हैं किसके, 90 डिग्री के. So square जो है वो क्या है, it is a parallelogram. So square is a parallelogram because the opposite sides they are parallel and equal and opposite angles are equal to 90 डिग्री you can write. बट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, ऑपोजिट एंगल सिर्फ इक्वल होते हैं. बट स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं. सो अगर मैं ABCD बात करूँ सो एंगल एंगल C के इक्वल है, ऑपोजिट एंगल इक्वल है स्क्वायर के अंदर, बट किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है. ठीक है. बट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल सिर्फ इक्वल होते हैं, वो कंडीशन होती है. सो स्क्वायर्स दे आर parallelograms also. Next is how square is a rhombus. So rhombus में हमें पता है कि all sides they are equal. All sides they are equal and diagonal bisect each other at 90 degree. Each other at right angle or you can say at 90 degree. So rhombus में सारी की सारी sides equal हैं, स्क्वायर में भी इक्वल है. डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं. 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं. सो दैट मीन्स कि जो स्क्वायर है वो क्या है, इट इज़ अ रोम्बस ऑल्सो. दैट इज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस दे आर सेटिस्फाइड बाय स्क्वायर. द लास्ट पार्ट इज रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल में हम क्या बोलेंगे कि स्क्वायर क्या है, वो हमारा एक रेक्टेंगल होता है. क्यों हमारे पास रेक्टेंगल होता है, बिकॉज हमारे पास ऑपोजिट साइड्स दे आर इक्वल
and parallel, and all interior angles is 90 degree. All interior angles कितने होंगे? They are 90 degree. Opposite sides are equal and parallel, and all interior angles are 90 degrees. So square is a rectangle. So let's move on to the question number 4. Name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. So the diagonals जिसके bisect करते हों वो हमने बताना है quadrilateral, and we know that quadrilateral it is parallelogram, rhombus, square and rectangle. हमने जो पीछे प्रॉपर्टीज़ को देखा वहाँ से हमने देखा जो बाइसेक्ट करने वाले जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं दैट इज़ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल. सेकंड पार्ट इज द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. दैट इज़ वो बाइसेक्ट तो करेंगे बट कहाँ पे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. वो हमने पढ़ा था वो कहाँ पे होते हैं? वो रोम्बस में होते हैं, एंड वो कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई होती है? हमारी स्क्वेयर में. So rhombus and square, they are the two quadrilaterals whose diagonals they are perpendicular bisectors of each other. Last part is the quadrilaterals whose diagonals they are equal. So diagonals equal किसके होंगे? ये भी हमने देखा था. That is rectangle and square. रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर जो है ये दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे? दे आर इक्वल. सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. सो हमने कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल होता है पॉलीगन विद 4 साइड्स. कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने पढ़ा था, कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में हमने पढ़ा था. वो क्या बोलता था कि अगर मेरे पास कोई पॉलीगन गिवन है उसके मैं वर्टेक्स पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो जो लाइन सेगमेंट आएगा या फिर जो डायगोनल बनते होंगे दो वर्टेक्स पॉइंट को ज्वाइन करने पे वो जो लाइन सेगमेंट्स होंगे या जो डायगोनल्स होंगे वो लाई करने चाहिए आइदर इनसाइड द पॉलीगन और ऑन द बाउंड्री ऑफ दैट पॉलीगन. तो वो कौन से पॉलीगन्स होंगे? कन्वेक्स पॉलीगन्स होंगे. सो उन्होंने पूछा कि रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, बताओ क्यों? बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी. अगर मैं ए एंड डी वर्टेक्स पॉइंट को ज्वाइन करूं तो मेरे पास लाइन सेगमेंट आ रहा है ए डी. वहीं पे अगर मैं ए एंड सी वर्टेक्स पॉइंट को ज्वाइन करूं तो मेरे पास एक डायगोनल आ रहा है ए सी, एंड ए सी क्या कर रहा है? लाई कर रहा है इनसाइड द रेक्टेंगल ए बी सी डी, एंड जो लाइन सेगमेंट आ रहा था ए डी वो लाई कर रहा था ऑन द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन दैट इज रेक्टेंगल ए बी सी डी. सो एंड इट सेटिस्फाई. अगर मैं बी एंड डी ले लूँ तब भी सेम इनसाइड आ जाएगा द रेक्टेंगल. अगर मैं बी सी ले लूँ तो ऑन द बाउंड्री पे आ जाएगा. दैट मीन्स कि अगर मैं किसी भी दो वर्टेक्स पॉइंट को ज्वाइन करूँ रेक्टेंगल के तो वो या तो बाउंड्री पे आएंगे रेक्टेंगल के या फिर वो इनसाइड लाई करेंगे रेक्टेंगल के. सो रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास? एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. सो रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल because on joining any two vertex points the line segments AB, BC, CD, DA and the diagonals AC and BD, they either lie on the boundary or inside the rectangle. So hence rectangle is convex quadrilateral. Okay, so this is the reason because on joining the any two vertex points we get the line segments AB, BC, CD, DA and the diagonals AC and BD. They either lie on the boundary of the rectangle or they lie inside the rectangle.
So the rectangle is convex quadrilateral. So the last question of this exercise, ABC is right angle triangle and O is midpoint of the side opposite to right angle. Explain why O is equidistant from A. So हमें एक right angle triangle given है A, B and C. This is a right angle triangle and right angle triangle की जो opposite side होगी AC, वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक midpoint होगा O. O is midpoint, that means OA is equals to OC. OA will be equal to OC because O is midpoint of AC. ठीक है, जो हमें गिवन था हमने लिख दिया. फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सटेंड किया है इन लाइंस को. ठीक है, ये हमें फिगर के अंदर ही है, हमें लाइन गिवन थी कि हमने यहाँ पे क्या किया, इसे एक्सटेंड किया है एंड एक्सटेंड करके हमने क्या फॉर्म किया है, एक रेक्टेंगल बन गया है. सो एक 90 डिग्री हमने यहाँ पे बनाया, एक 90 डिग्री वाला सेम ट्रायंगल हमने यहाँ पे लगाया. ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्सटेंड करने पे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है. ठीक है, एंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही है. ABCD अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाता है तो उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ तो पता ही है कि जो डायगनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर. डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को. OA इज इक्वल टू OC तो आ ही रहा था क्योंकि O तो मिड पॉइंट वैसे गिवन था. बट प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD. हमें क्या प्रूव करना है कि एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A. यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, B एंड C भी आएगा यहाँ पे. ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC. टू प्रूफ है हमारा ये. OA इक्वल टू OC हमारे पास आ गया. ठीक है, जब हमने इसे एक्सटेंड किया तो हमारे पास क्या बना, एक रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. दैट मीन्स OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD. एंड रेक्टेंगल की और क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट डायगनल्स they are equal also. That means AC is equals to BD and AC हमारे पास क्या है, OA plus OC. BD क्या है हमारे पास, OB plus OD. Since OA is equals to OC, so हम इसे लिख सकते हैं 2OA and OB plus OD यहाँ पे हमें OB is equals to OD है, so 2OB लिख सकते हैं. तो 2 से 2 कैंसिल, सो OA इज इक्वल्स टू OB आ गया. OA इज इक्वल्स टू OB आ गया. एंड हमारे पास OA इज इक्वल्स टू OC तो था ही था. सो OA इज इक्वल्स टू OB एंड OA किसके इक्वल था, OC के इक्वल भी था. सो OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC आ गया, जो हमने प्रूफ करना था. सो इस वे से आप इसे प्रूव कर सकते हो कि जो O है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C. दैट मीन्स कि ये जो हमने प्रॉपर्टी प्रूव की है वो कैसे की है, इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, हमने सिमिलर AB के पैरेलल यहाँ पे DC बनाया है, BC के पैरेलल हमने यहाँ पे AD बनाया है. ठीक है, सिंस AD एंड BC अपने को पैरेलल सी तो आप ये जो दो ट्रायंगल्स न्यू यूज करके आप इन्हू सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, आ दो अपने को साइड्स इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, फिर दे पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नाल अपने को ये एंगल भी इक्वल आ जाएगा. सो अपने को एंगल साइड प्रॉपर्टी ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AD BC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ AB DC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ. ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 90 डिग्री ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ एंगल्स भी 90 डिग्री है. पैरेललोग्राम है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं एडजेसेंट एंगल्स मिलके तो रेक्टेंगल बन जाएगा. अगर रेक्टेंगल बन जाएगा तो डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर नू एंड डायगनल्स दे आर इक्वल एंड इस प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करके तुहाडे कोल रिजल्ट आ जाएगा. ओके,
So with this, we are done with this chapter. So if you like this video, so don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching the video.